Good morning, students. We are now moving to the last topics of this chapter, or we can say Unit A. As I told you, there are three parts of physical education. The first part we are completing now today. The second part we have already done in +1, and then we will go on to the third part. Three chapters, last three chapters. So syllabus is running fast. You should prepare yourself for the unit test and then for the quarterly exams also. Before that, I will take attendance. Ayushi Singta, Akanksha Sharma, Ankita Changra, Kalpana Sharma, Mokshika, Pravjot, Shakshi, Sapna, Shariba, Sreshta Rana, Sabika Ali, स्वाति भारद्वाज, अमरप्रीत, हिमांशु सैनी, मनीष कुमार, नितेश दुबे, सौरभ राणा, सुशांत, नीलेश, and Vivek Sharma. Some students are not taking interest, though the syllabus is going to finish the first part rather, and the second part we have already done, as I told you. So Vivek Sharma, Lakhan, Shariba and Sapna, they have not attended any lecture so far. So they are going to suffer, I know, because physical education has also 60 marks theory paper and 25 marks practical and 15 marks assessment. So if you are not attending these classes, you will not be able to do anything in practical and also in theory and assessment. Of course, you will not get because you are not attending the classes. Kindly attend the classes. मुझे तो हैरानी होती है इस बात की कि आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि स्कूल चालू हो गए हैं, वहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग चली हुई है, एवरीवेयर इन ऑल द स्कूल्स इट इज गोइंग. So then why not in your school? You should have inquired. Inquiry karo and attend the classes. Only then you will be able to go through. So again, I'll give you 1 minute to get your pen and pencil and also the notebook. Please note. So your 1 minute starts now. So your 1 minute now is over and we will start. And I told you that leadership, in the leadership we have student leadership and we have physical education teacher leadership. Student leadership we have done, value of a student leader we have done, qualities of a student leader we have done, and we were discussing about the physical education leader in your school. And the physical education leader has also functions of a physical education teacher. Functions means the duties he has to perform. He may be able to perform them in a good manner or not. That is another thing. But these are his functions. Then we are going to hear now on qualities of a physical education leader. Qualities, functions we have done, and we will go on to the qualities of a physical education leader. And the qualities of physical education leader, we start from the first point, that is academically sound. All these qualities we have studied in the qualities of a student leader.
Same qualities are of a teacher because he is also a person and he is also a student is also a person. So some qualities which are in student, they should be in the teacher also. Only then these qualities will go to the student. So here, academically sound, this was the point in your student leader also. Academically sound means a physical education leader. Instead of teacher, you will write a leader, you will write here leader only. There you wrote student, that a physical education student must be academically sound. Here you will write a physical education leader must be academically sound. Academically मैंने उसने BA MA कर रखी हो, and also यहाँ थोड़ा एक ऐड कर देना है, and in addition to academics he should be trained also, training also, and he should be fully trained, academically sound and fully trained, and he should have command on his subject, voice and language. वॉइस एंड लैंग्वेज हर पर उसका कमांड हो, और बच्चे का चाहे ना भी कमांड हो हर चीज पर, लेकिन ए फिजिकल एजुकेशन लीडर का क्या होना चाहिए, एकेडमिकली साउंड होना चाहिए, एंड ही शुड बी ट्रेन्ड आल्सो, वेल ट्रेन्ड, एंड शुड हैव कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट, हिज वॉइस एंड लैंग्वेज. वॉइस का बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपकी वॉइस अच्छी है, खासतौर पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, अगर उसकी वॉइस इंप्रेसिव है, ऑल द स्टूडेंट्स विल फॉलो हिम. आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन को क्यों लोग लाइक करते हैं, क्योंकि हिज साउंड इज इंप्रेसिव, उसकी आवाज इंप्रेसिव है. तो आवाज जो है वो भी जरूरी चाहिए, साउंड जरूरी चाहिए. एकेडमिकली साउंड तो है ही है, लेकिन ये वो वाली साउंड नहीं है. लेकिन एकेडमिकली साउंड का मतलब उसकी वॉइस जो है दैट शुड बी इंप्रेसिव, लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड. द सेकंड इज गुड फिजिक एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी. देखने में भी अच्छा हो टीचर, ऐसे स्टूडेंट लीडर भी अच्छा होना चाहिए. गुड फिजिक, तो यहां भी यही है, गुड फिजिक एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी अच्छी हो उसकी, अच्छे कपड़े डाल के आता हो, वेल ड्रेस्ड अप हो, और उसकी फिजिक अच्छी हो. ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मरियल पतला सा हो और कोई उसको लाइक ना करे, देखना भी अच्छा ना पसंद करे. तो गुड फिजिक एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, दिस इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ ए फिजिकल एजुकेशन लीडर. तो फिजिकल एजुकेशन लीडर मस्ट हैव ए गुड फिजिक, गुड पर्सनैलिटी वी कैन से, एंड एक्सटर्नली भी अच्छा हो और इंटरनली भी अच्छा होना चाहिए, मन से भी अच्छा होना चाहिए. यू मस्ट हैव इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, मस्ट ड्रेस अप, आई टोल्ड यू, स्मार्टली. नेचर वाइज भी ही शुड बी लाइक्ड बाई ऑल. ऐसा होना चाहिए सब उसको पसंद करें, स्टाफ मेंबर्स भी, बच्चे भी. थर्ड इज गुड मॉरल कैरेक्टर. ये तो क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर बच्चे का तो होना ही चाहिए, फिजिकल एजुकेशन जो स्टूडेंट है उसका तो होना ही चाहिए. वहां भी यही पॉइंट है थर्ड. मैंने वही पॉइंट वहां लिखे हैं, वही पॉइंट यहां लिखे हैं, ओनली एक्सप्लेनेशन विल बी डिफरेंट. वहां आपने स्टूडेंट की बात करनी है, यहां आपने टीचर की बात करनी है. अब टूर्नामेंट्स में जाना है तो गर्ल्स भी जाएंगी और बॉयज भी जाएंगे. तो अगर टीचर का ही कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो कौन भेजेगा अपने बच्चों को? कोई नहीं भेजेगा टूर्नामेंट्स में. सो फिजिकल एजुकेशन लीडर मस्ट हैव ए गुड मॉरल कैरेक्टर. हिज बिहेवियर विद हिज स्टूडेंट्स एंड आल्सो कोलीग्स, क्योंकि वहां कोलीग्स भी होंगे टूर्नामेंट में, और स्कूल में भी कोलीग्स होंगे बहुत सारे. मस्ट बी गुड एंड इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. He to deal with, मैंने I told you, both boys and girls. So various tournaments में जाकर के और competitions में, तो he is expected to act as a their guardian की तरह काम कर रहे हैं उनका. Then intelligent तो होना ही चाहिए, ताकि वो जल्दी से कोई भी डिफिकल्टी आए तो उसको वो दूर कर सके. A physical education leader must be creative होना चाहिए and intelligent. Creative and intelligent you can write. He should be able to handle the difficult situations in the field or in the school intelligently उनको solve कर ले. Self disciplined, मैंने जैसे उस दिन बताया था कि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन होना और बात है किसी प्रेशर में, बट सेल्फ अपने आप डिसिप्लिन होना, कोई आपको देख नहीं रहा है, only your conscious is looking at you, only God is looking at you, we can say. So he should be self
डिसिप्लिन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है डिसिप्लिन का। सो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है शुड बी रेगुलर होना चाहिए, अपने आप ही पंचुअल हो, अपने आप का मतलब सेल्फ एडजस्टिंग हो, पोलाइट हो और पेशेंस हो उसमें। ही मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल and should know the techniques to deal with others, particularly in difficult situations, in extreme situations. Next is willingness to improve. Improve करने की, बच्चे का भी यही लिखा था मैंने, स्टूडेंट का भी, willingness to improve, 6 पॉइंट वहां भी वही है, willingness to improve। आपने देख लेना पॉइंट्स वही होंगे सारे उधर, लेकिन थोड़े इसमें एडिशनल कर दिए हमने टीचर के थोड़े से पॉइंट, लेकिन वैसे अदरवाइज ये सीरीज वही है, सीरियल वही है, आपने देख लेना। विलिंगनेस टू इम्प्रूव करने की उसमें भावना हो, इच्छा हो। ए फिजिकल एजुकेशन लीडर शुड बी एबल टू इम्प्रूव हिमसेल्फ फर्दर एंड he can solve the problems on priority basis. जो भी एफर्ट्स करेगा he will improve day by day with his efforts। चुपचाप बैठ जाएगा शांति से तो फिर कुछ नहीं होगा। इम्प्रूव करने के लिए ही विल हैव टू एंटर इनटू द फील्ड में काम करना होगा उसको, डिफिकल्टीज आएंगी तभी इंप्रूवमेंट आएगी। 7 इज इंस्पायर अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करे, हो बच्चों को इंस्पायर करे, अपने कुलीग्स को इंस्पायर करे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, टीम स्पिरिट उसमें होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। जो ये क्वालिटीज हैं फिजिकल एजुकेशन लीडर की, कैन इंस्पायर हिज फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी इंस्पायर हो जाएंगे उन क्वालिटीज को देख करके। इंस्पायर अदर्स। करेजियस एंड लॉजिकल, यही पॉइंट वहां रखा था बच्चों का, करेजियस एंड लॉजिकल। करेजियस, करेज होना चाहिए उसमें, बात कर सके वो हर एक के साथ, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अपोजिट टीम हो, चाहे कोई कोच हो दूसरा कोई। तो ही फिजिकल एजुकेशन लीडर जो क्या होगा, ही शुड बी लॉजिकल, बात लॉजिकल करे वो, और करेज हो उसमें, सो दैट ही कैन फियरलेसली टॉक टू द अदर्स लॉजिकली। तो करेज, ही शुड शो द करेज एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। ये नहीं कि हर जगह ही करेज दिखाता रहे, राइट टाइम एंड राइट टाइम हो और राइट प्लेस हो, तभी वो करेज को शो करे। मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स का मास्टर हो, एक्सपर्ट ऑफ फिजिकल स्किल्स हो, चाहे एक्सरसाइज करानी हो, चाहे ट्रेनिंग करानी हो बच्चों को, चाहे गेम कराना हो, चाहे उनको वीकेंड से मोटिवेट करना हो, हर चीज का उसमें स्किल्स हो, और डिमॉन्स्ट्रेशन की स्किल्स भी हो उसमें, एक्सप्लेन करने की स्किल्स भी हो उसमें। ऑल द टाइप्स ऑफ स्किल्स ए स्टूडेंट टीचर शुड हैव, so that he can deal with his students properly. Then the next point is, the 10th point is ability to express। उसमें भी था, मैंने कहा आपको, all these points are in the student leader also, all these qualities in the student leader also। ability to express करने की उसमें योग्यता हो, अपनी बात को रख सके। A physical education leader should be able to express his thoughts and ideas in an easy manner, आसानी से अपने थॉट दूसरों को बता सके। इमेजिनेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेजिनेटिव हो वो। देयर आर मैनी सिचुएशंस जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज में वेयर ओनली नॉलेज एंड रूल्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, बट इमेजिनेशन इज मस्ट, एंड एज वेल एज वी कैन से क्रिएटिवनेस इज मस्ट, सो दैट a fast decision can be taken at once to overcome the odd situation, to overcome the difficult situation. He should be optimistic to deal with the situation in a positive manner and quickly, positive manner में quickly solve कर सके। Abstract thinking, ये मैंने पहले ही बताया था, बच्चों के लिए बताया था। Abstract का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी प्रिंसिपल सामने नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आपके दिमाग में है कि ऐसा होगा। तो अगर है आपके दिमाग में और वाकई ऐसा होता है तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। When only difficulty arises during the game, such abstract thinking will help a lot. A physical education leader must have the capacity to anticipate in the problem. प्रॉब्लम को एंटीसिपेट करे हो,
एंड थिंक ओवर इट्स सोल्यूशन आल्सो, पहले से एडवांस में। एंड से फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड हैव अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि भाई ये गोल करने, यहां से लेफ्ट इन आएगा और ये सेंटर फॉरवर्ड जो है इसको पास करेगा और लेफ्ट इन को कंट्रोल करना है, पहले से इसको पता लग जाएगा इसको पास करना है, सो दैट ही मे रन टुवर्ड्स दैट साइड, उसका जो प्लेयर है वहां को दौड़े, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देन लॉयल तो है ही है, लॉयल्टी होनी चाहिए टुवर्ड्स द वी कैन से सिस्टम, और वी कैन से टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स हिज फॉलोअर्स, टुवर्ड्स हिज टीम मेंबर्स, जो भी हैं उसके, he should be loyal to them, he should guide his followers properly to do right work at the right time, and loyal and sincere to them. Next is example for others, दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, जब अच्छे आप में गुण होंगे, अच्छी आप में कोई आदतें होंगी, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, तो वो तभी फॉलो करेंगे। बिहेवियर होगा अगर आपका अच्छा, विद एवरीवन in the institution where he is working, where the physical education teacher is working, should be such that everyone is inspired and encouraged by his dealings. Then we can say that he can be an example for others. Commanding voice, मैंने पहले ही बताया था, जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कमांडिंग वॉइस होनी चाहिए आपकी, उसकी आवाज ही कमांडिंग है, तभी कोई टिक नहीं पाता। कईयों ने ट्राई करी कौन बनेगा करोड़पति उसकी जगह काम करने की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। वाई? बिकॉज ही हैज ए कमांडिंग वॉइस। ए गुड फिजिकल एजुकेशन लीडर मस्ट हैव ए गुड कमांडिंग वॉइस, सो दैट अदर्स आर इम्प्रेस्ड बाय हिज वॉइस एंड गुड लैंग्वेज। वॉइस यानी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस तो अच्छी है और तो गालियां निकाल रहे हैं, फिर क्या फायदा? बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। एंड 16th इज फर्म डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन उसका फर्म होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन लीडर मस्ट बी ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। वंस ही डिटर्मिन्स मैंने ये करना है, ही शुड बी एबल टू डू दैट। नो वन कैन स्टॉप हिम टू कंप्लीट हिज वर्क। हिज डिग्निटी एंड लेबर बिफोर द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट से पहले करेगा वो काम, डिग्निटी के साथ करेगा, लेबर के साथ करेगा, एंड विद इन द सोर्सेज इन हैंड। कई बार सोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, स्कूल में सामान नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। तो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो फर्म होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। देन 17th पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक्स्ट्रा है थोड़े। 16 पॉइंट तक तो वहां भी था स्टूडेंट लीडर का। अब 17th पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो एकदम से, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां उसको सोचना है कि अब क्या करना है, अदरवाइज वी मे लूज कॉन्फिडेंस एंड फील हेल्पलेस। लेकिन वो नहीं करेगा हेल्पलेस अगर उसमें कॉन्फिडेंस है और उसमें अगर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, देन ही विल नॉट डू लाइक दैट। ही विल नॉट हैव वी कैन से कैपेसिटी, he will have the capacity to solve that situation. A physical education leader must have enough confidence, उसमें होना चाहिए, to believe in himself and his performance also. His self-confidence should never let him down due to his firm determination. उसके firm determination के कारण उसका self confidence उसको कभी भी नीचे नहीं लाएगा। Then the next point is good motor capacity. मोटर मैंने होता है, जैसे मोटर का मतलब होता है चलने वाली गाड़ी को बोलते हैं मोटर, तो यहाँ भी गुड मोटर कैपेसिटी, चलने फिरने की कैपेसिटी बहुत है उसके अंदर, सुस्ती ना करे। अगर यहाँ लेटा हुआ है कोई सो कह दे ये फलाना डिफिकल्टी आ गई है, एकदम जंप लगा के जाए वो। गुड मोटर कैपेसिटी। 18th पॉइंट इज फिजिकल एजुकेशन लीडर मस्ट बी वी कैन से एनर्जेटिक एंड एक्टिव, so that he could easily do any difficult work very efficiently, quickly as compared to others. His speed must be appreciated by all. Laziness never should come in his way, and he is able to solve all tedious jobs in his front. जो भी उसके सामने आए उनको वो कर दे। 19th point is broad mindedness. broad mindedness हो उसकी, संकुचित विचारधारा ना हो,
A physical education leader should be broad-minded. He should always think good and should do good of others. He should also respect the emotions of others. He must have the courage to forgive others. दूसरों को माफी कर दे, forgive कर दे अगर कोई गलती कर दे तो, for their misbehavior or mistake. And the last point is ethical behavior. Ethics क्या होते हैं? Principles होते हैं that include, we can say, honesty, we can say equality, fairness, dignity, diversity और rights of the individual को देखे हो तो ethics उसके अंदर ये हों. These principles are called ethics and are well taken off by a good physical education leader or a teacher during games and sports. Ethics are very important. So all these are the qualities of a physical education leader. 16 qualities are the same which a student leader must have. 17th, 18th, 19th and 20th. These qualities, 4 qualities are given extra for the teacher. So these are the qualities of a good physical education leader. So here ends your chapter of socialization and leadership, and this part A of your syllabus is now over. Part B we have already done. I will give you some details of volleyball again, but not now. We will in the next lecture we will start the third part of our physical education, and in the third part we have 3 chapters. First, second and third. We will do first of all the first chapter, and then second chapter, and then the third chapter. So I have given you the work to draw a chart of methods of training. You have not done so far. Kindly draw that chart and show it to me, and write all these points, and also write the details also which I have spoken to you, or which you can write in your own language also. So thank you very much.